Once upon a time, 5 years back, when I joined ICER, I thought that eventually now my life would become slowly stable. Like every middle class student, I used to think that if I work hard in my 11th and 12th and enter a good reputed government college, that too like ICER, which is Institute of National Importance, then after that my life would become relatively easy. I know we all enter science with passion, but with passion, we somehow think that eventually, with time, we'll become financially independent, at least after master's, which is a big degree. Most students join with hope, and after spending 5 years in research institute, I have realized something which students do not know while entering. And today, I just want to tell you that after that, you have to decide because research is not bad. I am telling that it's just not for everyone. Research is very beautiful. I just want to convey that research demands sacrifices which many middle class students that is not feasible. Research demands that sacrifice. This video, it's not at all against research. I just want you to know the reality before entering any research institute. When I joined HISER, I did not know how research works because online on YouTube or any social media, mostly you'll get fancy labs. You'll see, wow, what a beautiful work. We are doing experiments in lab. For foreign labs, you'll see, wow, such a beautiful scenery. You stipends that will attract you a lot for foreign PhDs. That creates a different image of research among ourselves, among we all students, which is just one part of the story. Social media, it mostly, I have seen that social media tells you things which are good. They are not exposing, they are not telling you the reality. And I feel so bad because when I was entering ICER, I used to follow one channel on YouTube, which was the only channel which was telling about ICERs. And they like literally they glorified ICER's placement like anything. And I was a 17-year-old kid then. I trusted that video. I literally trusted that channel that wow, ICER has such a great placement. Now, after entering ICER, I understood that it is a research institute and placement is not their job. Fine. And mostly students think if I enter a good research institute, eventually I'll get a good foreign PhD and my life will be settled, or else I will get a decent package job. And I am really not blaming you people for thinking like that because if everyone will tell you, if people will make, clickbait thumbnails and they will just show you beautiful labs without telling the reality, then of course that image will be created in your mind. First thing is research takes a lot of time. Fine, medical profession also does. But medical profession may people are paid in their masters. They are paid decent in bachelors also they are paid more than PhD students of India. That's a different thing. But in masters they are paid very well, and their stipend is only like till 1 lakh for masters, I'm telling. And with along with that they also work in some clinics and all, so they are financially very stable in their masters. That's not the case in research. I'll tell you, 5 years of BSMS degree, after that you will have to do 7 years of PhD. I know PhD is of 3 to 5 years. But in any Indian institute, just go if you join a lab of ICER, IIT, ISC, any good reputed institute where real research happens, then you will see how much time it takes in a PhD. So, yes, 8 years is the maximum duration, and mostly people finish after 7 years or in their 7 years. And after 5 years, they don't get stipend. So, and stipend is also very less. इंडिया में तो पीएचडी को जस्ट एक डिग्री माना जाता है, एंड उसे 37,000 को जस्टिफाई किया जाता है, जो कि फॉरेन में ऐसा नहीं है. दे आर पेड प्रिटी वेल आफ्टर देयर एक्सपेंसेस. आई एम टॉकिंग अबाउट. बहुत लोग बोलते हैं ना कि उनका खर्चा हो जाता है. नो, मैं तुम लोग को सेविंग्स का बता रही हूँ कि उनका सेविंग्स बहुत डिसेंट होता है कि वो सेव भी कर ले और अपने घर पे भी भेज दें. बट रिसर्च में तुम्हें 15 ईयर्स लगेगा टू स्टार्ट अर्निंग. काउंट कर लो 7+5, और जो तुम्हारे ड्रॉप होंगे बीच में, अगर तुम ड्रॉप ना लो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट मोस्टली पीपल आई हैव सीन 12th के बाद 1 ईयर ड्रॉप, मास्टर्स के बाद 1 ईयर ड्रॉप टू गेट अ JRF, बिकॉज JRF रैंक से मिलता है, वरना तुम्हें स्टाइपेंड भी नहीं मिलेगा. एंड नॉट एवरी मिडिल क्लास स्टूडेंट कैन वेट दैट मच, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स रिटायर होने लगते हैं. फाइनेंशियली
हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और वो हमें कर रहे होते हैं। मैं थी जो कि फार्मिंग फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और वो मुझसे एक दिन बात कर रही थी। मैंने कहा आप तो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप जस्ट उनका कॉलेज खत्म भी नहीं हुआ था और वो आइसर में पीएचडी जॉइन कर ली थी। तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या फ़ायदा? मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं उनकी फार्मिंग में हेल्प कर पा रही हूँ, ना मैं उनका फाइनेंशियली हेल्प कर पा रही हूँ और उनका केयर तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर क्या फ़ायदा अंजलि? और मतलब मेरे को इतना बुरा लगा क्योंकि इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है? वो अंडर ऑल इंडिया 100 रैंक लाई हैं, वो जेआरएफ हैं और उनका कंडीशन वो कितना उनका शार्प ब्रेन होगा कि वो तुरंत लिटरली एक बिना एक ड्रॉप के भी वो पीएचडी पा ली और तब वो नहीं हेल्प कर पा रही हैं। मतलब तुम एक डिसेंट लाइफ तो दे सकते हो ना कि वो जो है इंडियन इंस्टीट्यूट की पीएचडी हैं और चलो कि पीएचडी 37,000 जस्टिफाइड भी होता अगर वो रात के 2-3 बजे लैब में काम नहीं कर रहे होते तो। सुबह 9 बजे से रात के 2-3 बजे तक लैब में काम करते हैं यार। अब मैं बात करूँगी फॉरेन पीएचडी का। ये एकदम मतलब इसको जनरलाइज़ कर दिया गया। आइसर से पढ़ो फॉरेन पीएचडी लग जाएगी। क्यों? मतलब तो भई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चे हो। तुम्हें तो पता होगा सिलेक्शन रेशियो क्या होता है। तो तुम गूगल पे देखो पीएचडी का सिलेक्शन रेशियो क्या होता है और क्यों लेंगे हर आइसर के बच्चे को? मतलब ये तुम खुद सोचो यार कि क्या ये ऑन ग्राउंड पॉसिबल है? मैं बोल तो रही हूँ 50 में 5 का पीएचडी लगता है। बट ये सोच लेना कि सबका लग जाता है दैट इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। एंड और सबसे बड़ी बात, तुम लोगों को मैं इसलिए ये मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार सर्च करो लेट्स से एएसयू। एएसयू में अप्लाई करने की एएसयू स्टैंड्स फॉर एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी उसकी एप्लीकेशन फीस क्या है? एक बार सर्च करो अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन भरते हो तो उसकी एप्लीकेशन फीस क्या है और ऐसा तो है नहीं कि तुम एक कॉलेज में भरोगे और तुम्हें वो इंस्टीट्यूट ले ही लेगा पीएचडी के लिए तुम्हें बहुत जगह अप्लाई करना पड़ता है लिटरली बहुत जगह अप्लाई करोगे तब जाके कहीं एक से तुम्हारा सिलेक्शन होगा और एक फॉर्म भरने में तुम्हारा 10 से 15 हज़ार लगता है इंडियन करेंसी में तो एक फॉर्म भरने के लिए इतना लगता है तो तुमने मान लो 100 फॉर्म भरा तो तुम्हारा कितना लगेगा तुम्हारे पास उतना पैसा होना चाहिए वेस्ट करने को क्योंकि तुम्हारा हो सकता है तो कहीं भी ना हो पीएचडी में बहुत हाई चांसेस है कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे फीस नहीं होता है बट मैक्सिमम जगह पे फीस होता है हर कॉलेज तुम्हारा फी वेवर नहीं देगा तुम्हें बहुत कम कॉलेजेस देंगे फी वेवर तो इसलिए तुम्हें मैक्सिमम कॉलेज में अपने पैसे से फी भरना पड़ता है यही रियलिटी है स्टाइपेंड आई नो सब कुछ कवर करता है लेकिन इनिशियली तो तुम्हें अपना पैसा लगाना पड़ेगा ना तुम्हारे जो एग्जाम्स होंगे वो टीओईएफएल ये सब का तो तुम्हें ही देना पड़ेगा ना तो इन सब में थोड़ा इनिशियल एक्सपेंस लगता है फी ये फॉर्म्स वगैरह भरने में तो इसलिए मैं अगेन बोलूंगी कि हर एक के लिए नहीं है अब तुम्हें एक दो ऐसे केसेस मिल जाएंगे कि किसी बहुत गरीब इंसान का बच्चा फॉरेन पहुंच गया है बट वो बहुत रेयर केसेस हैं तुम रेयर केस को लेके अपना पूरा लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते हो तुम्हें हमेशा मेजोरिटी को देखना होता है मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं 90% स्टूडेंट्स को कंसिडर करके बनाती हूँ वीडियो मैं उन 10% को क्योंकि यार रेयर केसेस तो होते ही हैं हर जगह और ऐसा सिचुएशन इंडिया का मैंने देखा है हर साल फॉरेन पीएचडी को इतना रोमांटिसाइज करके रखा है जो कि करना भी चाहिए क्योंकि इंडियन पीएचडी का हालत इतना खराब है तो लोग क्या करें हर साल तुम हर आईसर का तुम सोचो आईआईएससी का सोचो आईआईटीज का सोचो हर हमारे जितने भी क्रीमी ब्रेन्स वाले बच्चे हैं वो हर साल फॉरेन चले जा रहे हैं और वो वहीं रह रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो आना नहीं चाहते वो पीएचडी फॉरेन से करते हैं उसके बाद वो पोस्ट डॉक भी करते हैं मैं अपने फैमिली का बता रही हूँ, मेरे एक रिलेटिव हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं फ़िनलैंड में। वो डीयू से पढ़े हैं और वो एमएससी के बाद फ़ॉरेन गए और आज वो करीब 40-45 साल के होंगे और वो वहीं हैं। रिसर्च का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादातर हम वेस्ट का ही देखते हैं, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि हम हमारे जैसा ब्रेन किसी के पास नहीं है, बट वो जितने भी अच्छे ब्रेन्स हैं वो तो चले जा रहे हैं ना बाहर और उन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो क्या करें? वो बाहर ना जाएँ तो। जब इंडियंस जो है रिसर्च को उतना रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं तुम पैसा कम दो तो कम से कम रिस्पेक्ट भी नहीं है यार यहाँ पे तो और फॉरेनर्स इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं रिसर्च को तो इसलिए भी यार लोग चले जाते हैं मुझे इतना डर लगता है ना पीएचडी मुझे अच्छा लगता है रिसर्च मुझे बस डर लगता है कि मैं ये 7 साल का पीएचडी कैसे करूं करना ही पड़ेगा बट यार 7-8 साल कैसे करूँ मैं पीएचडी? मुझे बस इस बात का डर लगता है और मैं उन लोगों को देख के आई हूँ ना, मैंने देखा है कि वो फाइनेंशियली कितने मतलब वल्नरेबल स्टेट में हैं और उनके फ्यूचर का कोई ठिकाना नहीं है, वो अभी पोस्ट डॉक खोज रहे हैं। मतलब लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है यार, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक कर रहे हैं और पोस्ट डॉक उनको करना पड़ता है, मैं समझती हूँ क्योंकि यार अगर तुमको
इंस्टीट्यूट लाइक आईसर, आईआईटी, आईआईएससी ऐसी जगह प्रोफ़ेसर बनना है तो सिर्फ़ पीएचडी से नहीं बन सकते हो। तुम्हें पोस्ट डॉक पीएचडी के बाद होता है, वो भी करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें पोज़ीशंस खोजने पड़ेंगे और वो मिलना भी उतना ईज़ी नहीं है। लाइफ़ में स्टेबिलिटी नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ। मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि तुम करो। अब माँ-बाप दोनों मेरे कमाते हैं, तो मुझे उनको सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बट एज़ अ डॉटर मुझे करना चाहिए। दिल से तो लगता है ना कि करना चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि मिडल क्लास स्टूडेंट के लिए रिसर्च बहुत टफ़ हो जाता है, फाइनेंसेस के कारण। इसलिए तुम रिसर्च में आ रहे हो तो तुम्हारे पास ना फैमिली तुम्हारी फाइनेंशियली ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तुम फाइनेंशियल प्रेशर में रहोगे और इस प्रेशर में तुम मुझे नहीं लगता है कि तुम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। और ये सब तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बस फाइनेंशियल को लेके ज़्यादा बताया है, फाइनेंसेस को लेके। इससे ज़्यादा भी अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए मैं बस कहती हूँ कि रिसर्च एक बहुत अच्छी चीज़ है यार। बस मुझे ऐसा लगता है कि मिडल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत टाइम टेकिंग है, बट अगर तुम वो टाइम देने को रेडी हो और तुम्हारे पास कोई ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन क्राइसिस वाला नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स अर्निंग हैं और क्योंकि कुछ लोगों का होता है कि भाई-बहन होते हैं, उन भाई-बहन का पढ़ाई उनको अगर कोई मान लो घर का बड़ा बच्चा है और उसके भाई-बहन हैं, पेरेंट्स उतने मान लो कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से ही है, पेरेंट्स एक पापा ही कमा रहे हैं, तो फिर उनका मान लो पीएचडी में हो जाता है। एक बहुत फेमस एजुकेटर हैं, मैं उनसे बात भी की हूँ, तो मैंने उनको बोला कि मैम आपने पीएचडी क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला बेटा मेरे पापा जो हैं वो मतलब वो नहीं थे उतने कैपेबल और मम्मी थी बस उनकी तो वो हाउसवाइफ़ थी और उनका जो 2-3 भाई-बहन था, तो वो बोले उनका भी मुझे पढ़ाई देखना था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन एजुकेशन चुना क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ मुझे काफ़ी अच्छा पेमेंट कर रही थी और मुझे अपना घर देखना था। तो इसलिए बहुत लोग पीएचडी नहीं करते हैं क्योंकि यार उनके पास बहुत लोड होता है फैमिली का। अब मास्टर स्टूडेंट हूँ, मैं जब 17 साल की थी, तो मैं सिर्फ़ ये सोचती थी कि पैशन मुझे अपना पैशन फ़ॉलो करना है। मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मैं वही पढ़ूँगी। बट अब मुझे लगता है अगर मैं कुछ ठीक कर पाऊँ, अगर मैं बैक जा पाऊँ टाइम में, मैं ये चीज़ रेक्टिफ़ाई ज़रूर करूँगी क्योंकि पैशन अलोन डज़न्ट सॉल्व एवरीथिंग। तुम्हें एक ऐसा कोर्स करना चाहिए जो कि तुम्हें पैशन के साथ तुम्हारा फाइनेंसेस मैनेज कर पाए, जो भी तुम्हारी नीड है। तो बस मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुम अगर रिसर्च में एंटर कर रहे हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसा तुम्हारा लाइफ़ होगा। तुम्हें मैं रियलिटी बताना चाहती थी, दैट्स इट।